Hello students. As we have started this chapter before, say hello. We'll continue to the same. I have gave you the work to find the meaning of adolescence and puberty. I hope you have found that. Adolescence meaning a transition period between childhood to adulthood. Now Sana told them that the physical changes like height, chest and hair growth, pimples, body odor, heaviness and depth in voice and a lot of things happen to them as normal. Since each person's body is unique, the extent and pace at which this occur vary from person to person. सना ने अपने अंदर कुछ फिजिकल चेंजेस नोटिस किए, जैसे कि हाइट बढ़ गई, हेयर ग्रोथ हो गया, पिंपल्स आ गई, बॉडी से ऑर्डर आ रही है, वॉइस में डेप्थ आ रहा है एंड बहुत सारी चीजें उसके साथ हो रही थी. सिंस ईच पर्सन बॉडी इज यूनिक, जैसे कि हर पर्सन की बॉडी यूनिक होती है, उसका एक्सटेंट पेस भी पर्सन टू पर्सन वैरी करता है. द बॉडी ग्रोज एज इट्स ओन पेस, सो देयर इज नो नीड टू वरी इफ योर फ्रेंड हैज स्टार्टेड ग्रोइंग टॉलर. तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है कि आपका फ्रेंड टॉलर है या शॉर्टर है. आर यू स्टिल शॉर्टर, और इफ योर फ्रेंड स्किन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड ब्रेकिंग आउट, या आपके फ्रेंड को पिंपल हो गया या उसकी स्किन ब्रेक कर रही है, दैट इज नॉट द केस फॉर द रेस्ट ऑफ द बॉयज इन द क्लास. जस्ट एज वी need to practice and learn how to ride a bicycle, we need to practice and learn how to be adults. जैसे कि हम बाइसिकल सीखना सीखते हैं, वैसे ही हमें जब हम अडल्ट हो जाते हैं या हम अडल्ट स्टेज में होते हैं तो हमें भी प्रैक्टिस और बहुत सारी चीजें सीखनी है. Adolescence is like a time of practice. Now, Sana and Arpit know now that there are many different kinds of friendships people have with each other. सना और अर्पित ये समझ रहे थे कि डिफरेंट काइंड्स की फ्रेंडशिप्स होती है पीपल के साथ, हर दूसरे के साथ. इट इज गुड टू लर्न, ये जानना जरूरी भी है और समझना भी. हाउ दिस फ्रेंडशिप वर्क व्हेन वी अंडरस्टैंड थिंग्स, जब हम वो चीजें समझने लग जाते हैं हमें कंफर्टेबल फील होता है, वी फील कंफर्टेबल. दे आर ऑल्सो लर्निंग दैट मेनी थिंग्स चेंज. वो सीख रहे थे कि बहुत सारी चीजें बदलती है बट कुछ चीजें सेम भी रहती है, बट सम थिंग्स आर ऑलवेज दी सेम. An important thing that stays the same is that we need to be safe at all times. इन सब में एक चीज हमें हमेशा याद रखनी कि हमें हमेशा सेफ रहना है. Liking ourselves, feeling good about ourselves and communicating effectively help us to be safe. खुद को पसंद करना, खुद के लिए बेटर फील करना, और हम जब अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं तो हम खुद को सेफ फील करते हैं. Sana and Arpit are also learning how rules, laws and responsibilities help them and everyone to be safe. Sana और अर्पित सीख रहे हैं रूल्स, लॉज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो उन्हें हेल्प कर रही है सेफ रहने में, और जो उनके अराउंड रहते हैं उन्हें भी सेफ रखने में. ग्रोइंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस. हम जैसे बढ़ रहे हैं ये एक नेचुरल प्रोसेस है, राइट? नाउ प्यूबर्टी एंड अडोलेसेंस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट. As I told before, adolescence means a transition period between childhood to adulthood. तो ये लाइफ का एक पार्ट है और वो आगे पार्सल होता है. During puberty, a child's sexual and physical characters grow and mature, so they become capable of reproduction. Puberty starts with the production of new hormone. Puberty कब start होती है? एक प्रोडक्शन के न्यू हार्मोन से जो ब्रेन से होता है, called gonadotropin. GnRH for short form of gonadotropin, which further leads to other hormone changes or formation. Adolescence is a period in a person's life that occurs between the ages. ये adolescence period जो है person के अंदर कौन से एज के बीच में आती है? 11 to 19 years. During adolescence, a person attains puberty and adolescence experience. अब वो क्या experience करते हैं each age में? Pubertal body changes like physical growth changes and also emotional, psychological, social and mental growth change. In girls, adolescence puberty may begin a year or two earlier than a boys. Boys से पहले लड़कियों में, गर्ल्स में adolescence period start हो जाता है. Also the rate of change growth varies from person to person. Many times Sana and Arpit, just like other teenagers, बहुत बार सना और अर्पित और बाकी के जितने भी टीचर्स थे, उनके फ्रेंड्स थे, क्लासमेट्स थे, find it difficult to choose. After all, choosing is only always the easy job, even for
ग्रोन अप्स। बट लाइफ कैन नॉट प्रोग्रेस विदाउट चूजिंग। हमें कभी ना कभी किसी ना किसी चीज को तो चूज करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करने पड़ेगा। सो वी ऑल हैव टू चूज सम टाइम फॉर अवरसेल्फ एंड सम टाइम फॉर अदर्स। कभी कभी हमें खुद के लिए भी चूज करना है और बाकी जो हमारे अराउंड रहते हैं, जो हमारे क्लोज वंस है, उनके लिए भी हमें चूज करना पड़ता है। As teenagers, sometimes they have uncontrolled outburst of anger. See, you can see here Arpit's outburst of his anger and frustration call a tantrum. जब हम कभी किसी चीज से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो हमारा आउटबर्स्ट हो जाता है एंगर का। हम उसे फ्रस्ट्रेशन भी बोल सकते हैं, टैंट्रम भी बोल सकते हैं। एट टाइम्स दे गेट एंग्री फॉर नो रीजन। कोई रीजन ना होने के बावजूद भी हम गुस्सा करते रहते हैं। दे ऑफन गेट कंफ्यूज अबाउट द मैटर्स दैट मे सीम ट्राइवल टू ग्रोन अप लाइक, एंड व्हेन दे गो विद देयर लव वंस टू बाय न्यू क्लोथ्स बट कांट डिसाइड व्हाट क्लोथ सूट देम द बेस्ट। अब कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं किसी किसी चीज में। जब हम क्लोथ्स बाय करने जाते हैं तो कौन सा क्लोथ हमें सूट करेगा, कौन सा बेस्ट रहेगा, तो हमें समझ में आता ही नहीं है। समटाइम्स दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द राइट थिंग फॉर देम टू डू, लाइक व्हेन समवन हु इज क्यूट बट अ स्ट्रेंजर। कभी कभी उन्हें ये भी नहीं समझ में आता कि कौन सी चीज हमारे लिए सही है और कौन सी चीज हमारे लिए गलत है, कौन सबसे ज्यादा क्यूट है, कौन हमारे लिए सेफ है, कौन हमारे लिए स्ट्रेंजर है। सेंड्स देम अ फ्रेंड रिक्वेस्ट ऑन अ सोशल मीडिया। इसमें से जब सोशल मीडिया पे हम कोई फ्रेंड्स बनाते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि कौन हमारे लिए सेफ है, कौन हमारे लिए स्ट्रेंजर है। दैट इज वाई देयर लव एंड ट्रस्टेड वन हैव मेड सेफ्टी रूल्स फॉर देम फॉर चूजिंग सो दैट दे कैन बी सेफ। इसीलिए उनके लव और ट्रस्टेड वंस उन्हें सेफ्टी रूल सिखाते हैं ताकि वो चूज कर सके कि कौन हमारे लिए सेफ है। हियर दिस रूल्स फॉर एवरीवन टू फॉलो एंड बी सेफ। लेट्स सी व्हाट आर दिस रूल्स। Whenever you need to make a decision, you should ask yourself. जब भी हम कोई डिसीजन करते हैं तो हमें ये 7 क्वेश्चंस खुद से पूछने हैं। फर्स्ट वन इज, एम आई ओबेइंग द रूल्स मेड बाय माई पेरेंट्स एंड टीचर्स। क्या मैं उन रूल्स को ओबे कर रहा हूँ जो मेरे पेरेंट्स और टीचर्स मुझे बता रहे ताकि मैं सेफ रह सकूँ, टू कीप मी सेफ। सेकेंड, डू इट मेक मी अनकंफर्टेबल। जो चीज में, जो डिसीजन मैं ले रहा हूँ, क्या वो मुझे अनकंफर्टेबल फील कर रहा है? क्या जो चीज मैं कर रहा हूँ उसमें मैं हर्ट हो सकता हूँ? कैन आई गेट हर्ट? कैन समवन एल्स गेट हर्ट? क्या मेरी वजह से कोई और हर्ट हो सकता है? इफ आई डू दिस, व्हाट गुड रिजल्ट कैन आई गेट? अगर मैं ये सही डिसीजन ले भी रहा हूँ तो इसका क्या गुड रिजल्ट हो सकता है? इफ डोंट डू दिस, व्हाट गुड रिजल्ट कैन आई गेट? अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो इसका गुड रिजल्ट क्या हो सकता है? विथ माई फैमिली फ्रेंड्स एंड आई बी प्राउड ऑफ डूइंग दिस। जो मेरे फैमिली फ्रेंड्स मुझे बोल रहे हैं कि जब मैं करता हूँ तो मुझे प्राउड फील होता है। तो जब भी आप कोई डिसीजन ले तो आपको ये 7 डिसीजंस, 7 क्वेश्चंस खुद से पूछने हैं। मॉरल ऑफ दिस चैप्टर इज टू नो योर सेल्फ। आई विल हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट आई, अदर्स एंड आर गोइंग थ्रू। खुद को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि जो चेंजेस मैं फील कर रहा हूँ क्या वो भी वो फील कर रहे हैं। जो चेंजेस हमारे अंदर होते हैं हमें उन्हें फील करना चाहिए। कौन से डिसीजन सही है, कौन से गलत है, ये सारी चीजें हमारे पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स, लव वन, टीचर्स के साथ शेयर करनी चाहिए। जिस चेंजेस के साथ आप जा रहे हो उसी चेंजेस के साथ आपके फ्रेंड्स भी जा रहे होंगे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन सून।